guys, and welcome back to my channel. Welcome to your another reading. After a long time, let's get into the current feelings of your person. This can be the person that you're currently in a relationship with, no contact with, or this could be the person that you are in an on and off situation. ये crush वाली reading नहीं है, so this will not resonate if you have a crush, but this should be the one that you are in a relationship with, have broken with, or are in an on and off situation with, right? One thing that I'd like to mention is that if you want to book a personal reading with me, you can now WhatsApp me. The number will be given in the description box below. Do not call me because me and my team cannot answer each and every phone call. Your number will be instantly blocked if you guys call me. But also get a lot of fake and random phone calls and people literally started flirting with me. I really had ugly experiences over phone call. So your number will be instantly blocked if you call me. But if you want to book the personal reading, you can text me, you can message me on WhatsApp, or you can DM me on Instagram. The link for everything will be in the description box below. So as usual, this is going to be a pick a pile reading. The piles will be onto your screen now. You can pause the video, take your time, and we will move right into your reading. Pile number 1 and welcome to your reading. आपकी वीडियो शूट करते करते मैं डिस्ट्रैक्ट होके फ़ोन चलाने लग गई थी. So probably either your person is watching reels right now या फिर आपकी complain है कि whenever you spend time with your person, they are either scrolling through their phone or they get distracted. या फिर you were distracted. Take it how that resonates, vice versa. Maybe you were watching reels before watching this video. वो सभी करते हैं. But नहीं हो सकता है most of the people they were watching other tarot readings before coming to my video, so it's not also a very common thing of watching reels. So reels, getting distracted with phone could be a theme, or you could resonate with that. So do let me know if that is resonating in the comment section below. Distracted again, मैं coffee बनाने गई थी. Distraction. Either you believe आपके partner आपसे distracted है, या फिर ये कनेक्शन से डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप. ये आपकी मेजर कंप्लेन हो सकती है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर की इससे कंप्लेन हो सकती है. बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है. मतलब जो इंस्टेंट क्लोजनेस या फिर इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट, एंड मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सिली सा हुआ है. लाइक आई नेवर get into these type of moods while recording my video. I channel energy and मैं पूरी zone में होती हूँ. मैं meditate करती हूँ usually video से पहले. But I feel really silly. I feel like laughing for no reason. I feel really you know the cuteness aggression की किसी चीज़ पे बस like I just went towards my cat and मैंने उसको एकदम I kissed her aggressively. So cuteness, aggression, being distracted, being silly, not taking things seriously, getting distracted very easily. This is how your person could be, or this is how your person sees you, या फिर this is what they are feeling currently. हो सकता है आपके partner थोड़ा distracted feel कर रहे हैं connection से, and they are just focused on the silly things in life. They want to have fun. उनको ऐसा नहीं है that they do not want to attract, okay. ऐसा नहीं है कि they do not want to establish a good connection with you. मैं establish बोलने वाली थी, attract निकला. It's not that they don't want to attract the good things in the relationship, but it's just that they are in the silly mode right now. Like they want to have fun. They are enjoying the present moment. They are enjoying the now. इनसे ना बहुत सारी चीज़ें handle नहीं हो रही है एक साथ. And 10 of cups reversed at the bottom talks about how they want the peace in the relationship, how they want, एंड आपको बहुत इरिटेट कर सकती है ये एनर्जी, सिली एनर्जी, फन वाली एनर्जी, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है या कर रही है. कमिटमेंट इनको नहीं चाहिए, बट स्टिल उनको पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए इन द रिलेशनशिप. उनको बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं करना हो रही है, एंड दैट कुड बी द प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट. Let's see more. What are the current feelings of pile number 1's person? They don't want to end the relationship, but they don't want to come and talk. They don't want to give you the clarity. They don't want to intellectually invest into relationship. इनको अपना independence, again the 4 of wands reverse at the bottom. इनको commitment, seriousness नहीं चाहिए pile number 1. ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी पे, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी,
मुझे सर्दी नहीं है, बाय द वे. आई डो नॉट हैव कोल्ड. आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो आपके पार्टनर से, किसी सीरियस कॉन्वर्जेशन में आप हो इन्वॉल्व, हो सकता है आपके पार्टनर सडनली बोले कि अरे बाहर देखो वो चिड़िया कितनी सुंदर दिख रही है. इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, दिस कुड इरिटेट यू अलॉट. ये पर्सन फिलहाल बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में है. इट्स लाइक दे वॉन्ट योर प्रेजेंस इन टू देयर लाइफ, दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन टू द रिलेशनशिप. उन्होंने लॉन्ग टर्म ना जैसे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स. वाई इज देयर पर्सन इन दिस एनर्जी? वाई 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 वाई? 10 of Pentacles and 9 of Pentacles, 8 of Cups. Why are their person in this energy? ये इनका डार्क साइड हो सकता है, नॉन सीरियस. हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाई द हेरोफेंट? जैसे कि मैंने बोला ना, इन्होंने सरेंडर कर दिया है लॉन्ग टर्म फ्यूचर को यूनिवर्स पे. इनका पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा हो सकता है कि ठीक है ना, ये सीरियस चीज़ें, शादी ब्याह, व्हाटएवर, कमिटमेंट, ये तो यूजुअली लाइफ में हो ही जाती है कभी ना कभी. दिस इज़ द टाइम व्हेन आई हैव फन, दिस इज़ द टाइम व्हेन मैं ये सीरियस चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा या फिर नहीं सोचूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ. इन्होंने सरेंडर कर दी है सीरियसनेस एंड दे हैव समवॉट एस्टैब्लिश्ड डिटैचमेंट. बट ये डिटैचमेंट एक्चुअली अनहेल्दी डिटैचमेंट है. ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है अटैचमेंट इनकी जो रिलेशनशिप और आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स है. ये पर्सन थोड़े इमेच्योर एक्ट कर सकते हैं. इनका ऐसा है कि लेट्स हैव फन, लेट्स इग्नोर द सीरियस कॉन्वर्सेशन, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज शादी ब्याह, बच्चे, वॉटएवर जो भी सीरियसनेस कमिटमेंट है ये कभी ना कभी तो हो ही जाएगी लाइफ में, कभी ना कभी होती ही है. सबके लाइफ में ये फेज़ आता है सीरियसनेस का, कमिटमेंट का, शादी का, सेटलिंग डाउन, हैविंग अ फैमिली, क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ योर ओन. अभी ये सब सोचने का मेरा समय नहीं है, ये सब सोचने का मेरा टाइम नहीं है. बट इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. इनका थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर, थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप को लेके. इनका फोकस हो सकता है फिलहाल खुद को बिल्ड करने पे, बिकॉज इनका माइंडसेट ऐसा है, पाइल नंबर 1, कि ये जितने खुद के लाइफ में इस्टेब्लिश है, खुद की चीज़ों में इस्टेब्लिश है, कभी ना कभी उनकी लाइफ तो बन ही जाएगी. बट अगर ये कभी ना कभी इनकी फैमिली और ये कमिटमेंट तो आ ही जाएगी लाइफ में. बट इनका टाइम अगर ये वेस्ट करेंगे अभी, जो चीज़ 10 साल बाद होने वाली है उसको लेके, तो ये अभी में कैसे जिएंगे? अगर इन्होंने खुद ही को कैपेबल नहीं बनाया, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप में रह के भी, शादी में रह के भी वो कमिटमेंट ना दे पाए, वो चीज़ें ना कर पाए अपने पार्टनर के लिए जो यूजुअली करनी चाहिए. यहाँ पे ये हेरोफेंट कंफर्म करता है कि ये शादी वाली बात है. अगर आप आपके पार्टनर के साथ कोई भी सीरियस पार्टनरशिप में हो, जहाँ पे कमिटमेंट, शादी, ये सब की बातें होती है, तो ये ऑफकोर्स इट्स अब टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि आपके पार्टनर ये सब कॉन्वर्जेशंस नहीं करना चाहते. इनका इंटेंशन भले ही है दैट वन डे दे वांट टू गेट मैरिड, वन डे दैट दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू हैव अ फैमिली एंड स्टफ, बट द प्रॉब्लम हियर इज दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी अभी से टूवर्ड्स द सेम थिंग, बिकॉज इनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि कभी ना कभी ये चीज़ें हो ही जाएगी. सो आई एम बेटर नॉट गोना फोकस ऑन दीज थिंग्स अभी से. एंड एक थोड़ा डिटैचमेंट वाला पर्सपेक्टिव है, एक डिटैच पर्सपेक्टिव है. डिफेंसिव हो सकता है ये पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा. ये पर्सन जब भी आप बात करते हो, जैसे मैंने बोला कि आप कोई सीरियस कॉन्वर्जेशन में और आपके पार्टनर बोले देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है या फिर क्या चल रहा है, ना आपको इरिटेट कर सकती है ये एनर्जी, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है ये एनर्जी. क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स. आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान हो. आपका इंट्यूशन हो सकता है ब्लॉक फील होता है अभी कुछ दिनों से. ओ माय गॉड, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया था जब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, पॉसिबली अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड आप आपके पार्टनर की एक्चुअली एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके पार्टनर की आप एक्चुअली एक ड्रीम कम ट्रू हो. बट द प्रॉब्लम हियर इज, आपको मैनिफेस्ट करते करते ना ये पर्सन अपने, मैंने जैसे बोला ना, ये इनकी डार्क साइड है, एक डिटैचमेंट इनको फील होती है. हो सकता है इन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया था एंड वो पार्टनर इनके टाइप नहीं थे, बट आप इनके टाइप हो. बट वो रिलेशनशिप में इन्होंने एक डार्क साइड को अडेप्ट कर लिया था, विच इज़ डिटैचमेंट.
डिटैचमेंट बट एन अनहेल्दी डिटैचमेंट। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कमिटेड ओवरली गिविंग थे लास्ट रिलेशनशिप में, बट वहाँ पे कोई आउटकम नहीं था, एंड देन दे वर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक यू, होपिंग फॉर अ पर्सन लाइक यू, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आ गए तो ये पर्सन ने एक अनहेल्दी डिटैचमेंट सीख लिया कि कभी ना कभी तो चीज़ें हो ही जाएगी, सो बेटर है फोकस ऑन माई लाइफ एंड माई थिंग्स, बट इट इज़ अनफेयर टू यू। आपके पर्सन ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि whatever they have learned वो पास्ट रिलेशनशिप में था, यू आर नॉट द सेम पर्सन लाइक देयर एक्स और द पर्सन दे डेल्ट विद इन द पास्ट। सो इनको हो सकता है दे हैव कफ और कोल्ड राइट नाउ बिकॉज आई हैव वाटरी नोज। इनके इमोशंस ना बहकी बहकी एक्शंस से निकलते हो सकता है कभी कभी। सो दिस पर्सन इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड, सो इवन इफ वो बोल के ना दिखाए, कॉन्वर्जेशंस में इन्वॉल्व ना हो, बट इनकी एक्शंस बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती होगी, मेक श्योर यू नोटिस दैट। बट इनका अनहेल्दी डिटैचमेंट जो है ये इनका डार्क साइड है, जो इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में से सीखा था, जहाँ पे उनको वो सेटिस्फैक्शन या फिर वो इन रिटर्न एक्शंस या फीलिंग्स नहीं मिली थी उनके पास्ट वाले पार्टनर से जो आपसे मिलती है या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। यू आर देयर विश कम ट्रू, बाय द वे योर पर्सन हैज मैनिफेस्टेड यू, यू आर योर पर्सनस ड्रीम कम ट्रू, बट इन्होंने आपके आने के बाद, हो सकता है इनके पार्टनर ने आपको ग्रांटेड लिया पास्ट वाले, बट अभी ये आपको ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज उनको लगता है दैट इज़ द हेल्दी वे। सो दिस इज़ बेसिकली ट्रॉमा डंपिंग, योर पार्टनर इज ट्रॉमा डंपिंग ऑन टू यू from the past relationship, but which is not right for you because आप नहीं डिजर्व करते हो ये ट्रीटमेंट। सो आई थिंक यू शुड ईदर डिटैच फ्रॉम दिस पर्सन फॉर अ वाइल, या फिर आप जाके बात करो इनसे, बिकॉज इवन इफ अगर आपने, जैसे मैंने देखा ही है कि आप इनसे बात भी करते हो तो आपके पार्टनर बात तो करते नहीं है। सो आई थिंक यू शुड प्रे ऑन दिस, प्रे टू द यूनिवर्स, प्रे टू द गॉड कि यहाँ पे ये सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपको क्लैरिटी दे थोड़ा। हो सकता है आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो या फिर आपके पार्टनर का इंट्यूशन ब्लॉक था लास्ट रिलेशनशिप में, इनको इंट्यूटिवली पता था कुछ चीज़ें, whatever जो भी सिचुएशन थी, मैं नहीं बात करना चाहती हूँ पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, बट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको थोड़ी स्ट्रेंथ तो लगेगी पाइल नंबर 1 ये पर्सन से डील करने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आपकी चॉइस है वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दिस पर्सन और नॉट, बट आपको वही बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको पेशेंस लगेगा, स्ट्रेंथ लगेगी अगर आप इनसे डील करना चाहते हो रियली। एंड आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा प्रे करो, pray to the universe, pray to God कि give you some clarity around this situation, at the same time pray to the God कि ये जो भी ब्लॉकेज है आप दोनों के रिलेशनशिप में इसको रिलीज़ किया जाए। बिकॉज अगर आप सही में चाहते हो आपके पार्टनर बुरे नहीं है पाइल नंबर 1, मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर के इल इंटेंशंस है आपके तरफ या फिर दे आर अ बैड पर्सन बाय हार्ट, बट ये उनको भी नहीं पता है कि वो ये सारी चीज़ें करते हैं बिकॉज दिस इज ऑफकोर्स ट्रॉमा डंपिंग, एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ करते हैं। सो इन्होंने इतना ज़्यादा ओवरली इमोशनली इन्वेस्ट किया हो सकता है कोई सिचुएशन में कि अभी इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल एंड डिफेंस मैकेनिज्म एक क्रिएट कर लिया है अपने हार्ट के अराउंड कि ये माइंड गेम्स खेलते हैं, एंड दिस इज़ नॉट इवन देयर ट्रू पर्सनैलिटी। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, सो रिवर्स जब एक कोई कार्ड हो जाता है 11-11 बाय द वे एज आई सेड दैट, एक कार्ड जब रिवर्स हो जाता है ना तो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को पूरा उल्टा पुल्टा कर देता है। दिस इज़ नॉट दैट ट्रू सेल्फ, उनकी ट्रू सेल्फ है किंग ऑफ सॉर्ड्स, बट ये रिवर्स में चल रहे हैं। तो इनका जो भी पर्सनैलिटी आप देख रहे हो जब से भी आप इनके साथ हो, दैट इज़ नॉट देयर ट्रू पर्सनैलिटी, दिस इज़ नॉट हु दे आर। तो आई विल एडवाइज यू टू प्रे फॉर दिस पर्सन, प्रे फॉर योर रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर गलत है, एंड मुझे नहीं लगता अगर when you know your partner is genuine, when you know your partner's feelings are genuine towards you, your partner's emotions are really genuine towards you, अगर एक थोड़ा आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस एफर्ट्स डालते हो आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी, आपका ही रिलेशनशिप बचेगा। सो इफ़ यू ट्रूली आर इन्वेस्टेड इन टू दिस रिलेशनशिप एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्कआउट, जस्ट डू वन थिंग, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड। शिव जी आ रहे हैं मेरे दिमाग में, सो मे बी दे कुड बी रियली सिग्निफिकेंट। तो प्रे टू शिव जी, प्रे टू एनी डेटी यू बिलीव इन, एनी रिलीजन यू बिलोंग टू, प्रे टू गॉड to give you clarity and to give your partner the clarity to heal that trauma, अपने ड्रामा को हील करके, ताकि वो आपके सामने ट्रू बन के आए, जो वो जैसे है वैसे के वैसे। ऐसा प्रे कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। व्हाट विल बी द रिजल्ट्स इफ दे प्रे टू गॉड? ओ माय गॉड, मैंने सिर्फ एक बार शफल करा है, इफ यू गाइस सॉ दैट, द लवर्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है ये पार्टनर आपके तरफ ओपन अप करे अबाउट देयर ट्रॉमा। व्हाट एल्स विल हैपन? एस ऑफ कप्स, एंड देन कम्स द हीलिंग, and then comes the healing and actually moving on towards the
and actually moving on towards the better future. Conversation, जो conversations नहीं होते थे, conversations होंगे आप दोनों के बीच में. So praying is actually going to remove your blockages from the relationship. ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड. इनको बात करने में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत मेसी है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत मेसी है, तो वो थोड़ा डिक्लटर करने में टाइम लगेगा. बट प्रेयर इज एक्चुअली गोइंग टू मूव योर चैरियट ऑफ रिलेशनशिप फॉरवर्ड. सो मेक श्योर यू आर प्रेइंग. एंड दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 1. डू लेट मी नो इफ इट रेजोनेटेड. आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो. नंबर व्हाट्सएप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डो नॉट कॉल मी. आई हैव रियली हैड अगली एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द फ़ोन कॉल. सो आपका नंबर ब्लॉक किया जाएगा इफ़ यू कॉल मी. यू कैन ओनली टेक्स्ट मी व्हाट्सएप में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो. अगर आप के कंट्री में, आपके प्लेस पे अगर व्हाट्सएप नहीं है, सो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एवरीथिंग. बट आई डू नॉट रिसीव कॉल्स एंड योर नंबर विल बी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फ्रॉम माई सिस्टम, राइट? That's pretty much the reading, and yeah, that's pretty much the reading. I hope you enjoyed it. I hope it resonated. Do let me know which part resonated with you the most. Do hit that subscribe button, like this video. I am sending you guys so much love and light. We'll see you in the next one. Bye bye, take care. Pile number 2 and welcome to your reading. Pile number 1 mein I was very silly, excited, energetic and feeling really excited. Now I feel really sleepy and dull. My eyes are literally very heavy. कोई भी सेकंड बंद हो सकती है, इतनी नींद आ रही है मुझे. बट आई एम स्टिल गोना कंप्लीट दिस रीडिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट माई एनर्जी. मैं लिटरली बहुत घंटे सोई हूँ कल, एंड दिस इज़ नॉट माई एनर्जी. माई स्लीप हैज़ बिन completed, and this could be your energy, this could be your partner's energy, because I am channeling a lot of stuff. Pile number 1 was really crazy reading. You can watch the starting ki reading of pile number 1. You'll know what I'm talking about. Let's begin with your reading and let's see what are the current feelings of your person. I will also see what could be their potential next actions if I get any intuitive messages about them. Let's begin. Pile number 2's person and their current feeling. Firstly, मुझे लगता है आपके person ने ना बहुत होपलेसनेस को एक्सेप्ट कर लिया है when it comes to this relationship. They are not quite hopeful about the future, or they are not quite hopeful about what's gonna happen in the connection next, or about the connection in general. Their current feelings are revolving around a reunion. They really wanna talk to you again, or they are reminiscing about the memories, the shared experiences together. आपके अगर कोई पिक्चर्स है, दे डू वॉच द पिक्चर्स. उनको पास्ट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दे डू रेमिनिसाइज अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड, राइट? दिस पर्सन कुड नॉट बी दैट मच कॉन्फिडेंट टू कम टूवर्ड्स यू. या फिर मैंने जैसे बोला ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं ये कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके. सो उनको लगता ही नहीं है, उनको कोई होप्स ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या फिर इनको कोई पोटेंशियल नहीं दिखता आपके रिलेशनशिप में. ये भी एक एनर्जी आ रही है. बट हाँ, आपकी जो मेमोरीज़ है, आपकी जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस मेमोरीज़ है, उनको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं. बट देन एक्शंस को लेके या फिर फ्यूचर को लेके दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर और कॉन्फिडेंट, और दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. Then we have 5 of Swords reversed and the 6 of Wands. इनको लगता है तभी जाके ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है जब आप दोनों के रिलेशनशिप में या फिर आपके अंदर कोई चेंजेस आए. एंड तब तक इन्होंने सरेंडर कर दिया है बिकॉज कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत ज़्यादा था, लिंगर करता था रिलेशनशिप में, एंड दे नो लॉन्गर वांट टू एंटरटेन दैट, सो दे हैव डिटैच्ड. नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि गिव अप कर देना, नहीं है कोई होप्स, नहीं मुझे टाइम वेस्ट करना है, नहीं मुझे वेट करना है, कोई होप्स तो नज़र नहीं आती है, सो आई विल इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी इवन थिंकिंग अबाउट द कनेक्शन. ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं आपके पार्टनर. एट ऑफ कप्स इज अगेन वॉकिंग अवे, गिव अप कर देना, नॉट बीइंग होपफुल. एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स फोकसिंग ऑन अदर एरियाज ऑफ देयर लाइफ. हो सकता है इनके लाइफ में बाकी की भी चीज़ें बहुत
पीक पर हो, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में जिस पे वो फोकस कर रहे हैं फिलहाल. एंजल नंबर 5353 could be significant over here, which is also 7 by the way. Current feelings of pile number 2's person. मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डन नज़र आ रहा है ये सिचुएशन से, ये रिलेशनशिप से. टायर्ड, जैसे मैं इनिशियली बहुत स्लीपी फील कर रही थी. इनको लगता है जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, प्लान करा था रिलेशनशिप में, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है. दे आर प्रिटी डन विद द रिलेशनशिप. स्टेबिलिटी, कमिटमेंट कुछ नज़र नहीं आती इनको रिलेशनशिप में. उनको बस पीस चाहिए. आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया है पाइल नंबर 2. वट एवर योर डायनामिक्स आर, आपके पार्टनर ने लिटरली गिव अप कर दिया रिलेशनशिप पे. उनको पीस चाहिए लाइफ में. इट्स लाइक द रिलेशनशिप इज़ टू मच ड्रामा. रिलेशनशिप के बारे में सोचना इज़ टू मच ड्रामा. सो उन्होंने अपनी एनर्जी पीछे ले ली है. दे हैव गिवन अप. दैट्स व्हाट आई सी. मुझे बहुत डन नज़र आते हैं आपके पार्टनर. क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? आई रियली वांट टू नो द फ्यूचर. क्या पॉसिबल फ्यूचर है ये सिचुएशन का यूनिवर्स? व्हाट कैन हैपन इन पाइल नंबर 1's रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, विद देयर पार्टनर? आप फ्री हो जाओगे ये रिलेशनशिप से, ये कनेक्शन से. ये कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए आया हुआ रिलेशनशिप हो सकता है. आप मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो ये रिलेशनशिप से, या फिर आप वो चीज़ें चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जो आपके पार्टनर चाहते थे. एंड देन देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग. बिकॉज द डेथ रिवर्स, द 3 of swords रिवर्स, both of them talk about, the death reverse talks about reunion, not giving up on something which has ended, and the 3 of swords reverse is about healing. तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करें, या फिर एक इनिशियली फ्रेंडशिप से वापस आप मैनिफेस्ट करो ये रिलेशनशिप में रियूनियन. एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग दैट यू विल बी टेकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ यू. आप वॉक अवे करोगे टूवर्ड्स योर हीलिंग. आप वॉक अवे करोगे फ्रॉम दिस पर्सन, एंड आप वॉक अवे करोगे टूवर्ड्स योर हीलिंग, टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग इमोशनली फॉर योर सेल्फ. यू विल टेक द लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. एंड यहाँ पे मुझे क्लोजर नज़र आता है. यहाँ पे मुझे एक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है पाइल नंबर 2. एंड ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर. एंड ये बहुत ही टाइनी कलेक्टिव के लिए, एकदम 9% लोगों के लिए, 2-4% लोगों के लिए, कि आप वो चीज़ें अपने कैरेक्टर में लाओगे, पर्सनैलिटी में लाओगे, वो चीज़ें अपनी बदलोगे जो आपके पार्टनर आपसे चाहते थे, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप टेम्पररीली वर्कआउट तो करेगा बट बाद में वापस ख़त्म हो जाएगा. तो आपको बोला जा रहा है बाय हुक और बाय क्रूक ये कनेक्शन ख़त्म है. ये कनेक्शन हो सकता है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है. तो आप चाहे जो भी करो, अगर आपको खुद को सप्रेस करके किसी के साथ रहना पड़े तो पहली बात वो प्यार नहीं है. सेकेंडली, वो सैक्रिफाइस करके भी अगर रिलेशनशिप वर्कआउट करने ही नहीं वाला है, देन वाई आर यू विद दैट पर्सन? तो बाय हुक और बाय क्रूक दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू कम टू एन एंड. तो आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर यू मेक द राइट चॉइसेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर पर्सनैलिटी एंड फॉर योर कैरेक्टर, ताकि आपकी लाइफ डैमेज ना होए, आपका इमोशनल वेलबींग डैमेज ना होए आफ्टर यू वॉक अवे और ब्रेकअप विद दिस पर्सन, राइट? तो ओवरऑल आई सी कि ये कनेक्शन खत्म हो चुका है पाइल नंबर 2. And it's better you walk away even if you want to change your personality, character, the things in your connection. आप कर सकते हो of course, no doubt. See, but eventually you will have to walk away. You'll have to walk away. And पीछे का कार्ड था 2 of cups. Okay, this is weird. ये कार्ड्स पता है कैसे थे? ऐसे ऐसे. मुझे पहले 8 of cups दिखा, फिर 2 of cups इसके पीछे ऐसा था ये कार्ड. तो देखते हैं. Let's clarify what is this. Why is this 2 of cups here? Why is this 2 of cups here? Two of cups. Why is this here? King of cups and the 6 of cups. All right. Basically, आपको बोला जा रहा है कि इधर ये आप लोगों की फैंटेसी है
मुझे फैंटेसी बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में सुनाई दे रहा है. तो दिस इज़ योर फैंटेसी दैट यू वॉन्ट योर पार्टनर टू वन डे. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं वॉक अवे करूँगा या कर लूँगी मेरे रिलेशनशिप से, मेरे सारे एफर्ट्स जो है ना मेरे लाइफ में वापस आने वाला है. ये आपका बिलीव हो सकता है कि द यूनिवर्स इज़ नॉट शोइंग यू द साइंस, बट द मोमेंट यू वॉक अवे आपके लिए एक हिडन रीयूनियन छुपा है आपके पार्टनर की तरफ से. एंड आपका लेसन था ये सिचुएशन में खुद से प्यार करना. एंड जब आप ये सीख जाओगे तो इक्वल गिव एंड टेक आ जाएगा रिलेशनशिप में, एक ऑफर आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा. आपके पार्टनर फाइनली इमोशनली पॉर इन करेंगे, आपके लाइफ में आएगी, एक न्यू बिगिनिंग होगा. एंड ये यूनिवर्स का प्लान है. बट ये प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है. हो सकता है ये आपका पुराना वाला थॉट प्रोसीजर था, या फिर कुछ तो आप ऐसा सोचते थे, या फिर कोई रीडिंग देख ली थी ऑनलाइन, जो भी था. बट ये हो सकता है आपका पुराना माइंडसेट है वो, बट वो हो नहीं रहा है. तो आपका हो सकता है भरोसा जो है वो उठ चुका है रिलेशनशिप से, या फिर आपका भरोसा उठ चुका है टैरो रीडिंग से, यूनिवर्स से, भगवान से, या फिर आप नाराज हो, रूठे हुए हो. बट आपको बोला जा रहा है कि आपको लग सकता है कि अनफेयर हो रहा है आपके साथ कुछ तो, कि मैंने वॉक अवे कर लिया, मूव इन कर लिया, जो भी कर लिया आपने वो मूव ऑन कर लिया. बट ये सिचुएशन आपके फेवर में ये नहीं कर रही है, अभी भी रेजोनेट नहीं कर रही है, फेवर में नहीं आ रही है. आपको बोला जा रहा है कुछ तो मिस आउट कर रहे हो आप यहाँ पे. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क आउट. अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ का रिजल्ट लाने के लिए खुद से प्यार करना सीखोगे तो वो खुद से प्यार है ही नहीं. ये पीपल प्लीजिंग है. एंड ये कार्मिक सिचुएशन है. ये लेसन था यहाँ पे कुछ तो जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, या फिर एक लेसन है जो आप सीखोगे, या फिर कुछ सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स. देयर इज समथिंग लिंगरिंग आउट हियर दैट यू आर मिसिंग. कुछ तो मिसिंग पार्ट है यहाँ पे. वो कार्ड से मुझे बहुत कुछ आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प इट इंट्यूटिवली. आपका इंट्यूशन आपसे कुछ तो कहने की कोशिश करता है. पाइल नंबर 2, आप सुनते नहीं हो. ये नहीं होने वाला ये सिचुएशन में कुछ भी. ये सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा वैसा जैसा आप चाहते हो. आई नो इट्स वेरी हार्ड टू लिसन, बट आई एम गोना बी ऑनेस्ट ओवर हियर. ये नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. आपको फ्री करना पड़ेगा खुद को मेंटल प्रेजेंस से. आपने जो एक होपफुल लाला लैंड फैंटेसी बना के रखी है ना आपके दिमाग में, कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, अगर मैं ये करूँगी तो ये होगा, अगर मैं मूव ऑन करती हूँ पार्टनर वापस आएगा, मैं खुद से प्यार करती हूँ पार्टनर प्यार करेगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. इट्स नॉट हैपनिंग. इट इज़ नॉट. This is not how things work. It's not gonna happen. It's not gonna work out in that sense. आपको जो रियल लेसन्स है ना, मुझे बहुत एंगर आ रहा है आपके स्पिरिट टीम से, गाइड से, कि आपको जितना लेसन सिखाया जा रहा है आप उतना लेसन सीखो. आई नो दिस इज़ हार्श, बट दिस इज़ नॉट मी. डोंट शूट द मैसेंजर, आई एम जस्ट अ मैसेंजर. आपको बोला जा रहा है जितना आपको सिखाया जा रहा है एक सिचुएशन से, आप उतना ही सीखो. आप अपना दिमाग लगा के, आप अपने ही रूल्स बना के, रेगुलेशंस बना के, अपने इंट्यूशन को इग्नोर करके, अगर आपको फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है कि 5 दिनों में आपको किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हो कि अच्छा 5 दिन में मुझे ये 5 चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे मुझे रिजल्ट आएंगे, या फिर 5 दिन में ऐसा कुछ तो भी, लाइक अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाना और फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करना. ये आपको बंद करना पड़ेगा. ये गलती है आपकी, ये गलत करते हो आप, एंड ये सबके लिए नहीं है. सो यू विल नो इफ दिस इज़ फॉर यू. 11 अगेन बाय द वे, एज आई सेड दैट. आपको बोला जा रहा है आपको खुद का दिमाग लगाना बंद करना पड़ेगा ये सिचुएशन में. आप खुद ही के रूल्स बनाते हो और आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हो, बट जब वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप रूठ जाते हो यूनिवर्स से, आप गुस्सा हो जाते हो, आप फिर आपका फेथ थोड़ा लूजन हो जाता है. बट वो कभी यूनिवर्स ने तो बोला नहीं था ना ये चीज़ें होगी. इट इज़ ऑल्सो नॉट मैनिफेस्टेशन बाय द वे. आपका इंट्यूशन आपको जब ऑलरेडी चीज़ें बोलता है, एंड व्हेन डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, यू कैन नॉट वर्क एंड यू कैन नॉट वर्क आउट एनीथिंग. आपके कंट्रोल में नहीं होती है चीज़ें. तो आप खुद से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठना, एंड देन रूठना, एंड देन जो सिचुएशन में एक्चुअली आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो आप सीख नहीं पाते हो, राइट. तो दैट्स वाई आप आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. आप जो रियल मीनिंग है किसी चीज़ का, वो मीनिंग आप ले नहीं पाते हो, बिकॉज आप अपने हिसाब से मीनिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हो. तो आपको बोला जा रहा है आपके लॉजिकल दिमाग को थोड़ा साइड में रख के आपके इंट्यूशन को आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपका इंट्यूशन ऑलरेडी चीज़ें जानता है. आप इग्नोर करते हो बस उन चीज़ों को. आपको ऑलरेडी पता है आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का क्या इंटेंशन है, किसका क्या जो भी चल रहा है. यू नो इट ऑलरेडी. योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग नोज इट, बट देन यू इग्नोर इट बिकॉज ऑफ योर लॉजिक, बिकॉज आप कुछ अपना ही बनाना, कुछ तो हाथ पैर लगाना चाहते हो. इट इज़ नॉट वेरी एंग्री एनर्जी इज कमिंग आउट. इट इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. That's not how things are going to work out for you. Point number 2.
तो अपना दिमाग थोड़ा कम लगाओ. वेरी रूड अगेन आई नो, बट दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई चैनल्ड मैसेजेस. एंड जो इंट्यूशंस है आप उन पे थोड़ा काम करो. जो आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा उसको सुनो. अगर आप सही में सिचुएशन से निकलना चाहते हो, अगर कोई चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, अगर ये जो सिचुएशन आपको इमोशनली ड्रेन करती है, अगर आप उसमें अच्छा फील करना चाहते हो, तो अपने इंट्यूशन की सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ. आपका जितना आप कम लॉजिकल दिमाग यूज़ करोगे, जितना इंट्यूटिवली चलोगे, उतना आपके साथ सही होगा. एंड अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशंस लगाना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, बिकॉज गलत जा रहे हो. एग्जैक्टली आपको अगर फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर चाहते हो कि चीज़ें फाइनली लैंड करे एक कोई तो कॉमन ग्राउंड पे जहाँ पे आपको फाइनली अच्छा फील होए, और अगर आप आपके पास्ट के जितने भी एफर्ट्स है उसके गुड रिजल्ट्स चाहते हो, तो पहले आपको गुड बनना पड़ेगा. आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको स्पिरिचुअल गाइड्स का सुनना पड़ेगा, बिकॉज आप नहीं जानते हो. आपका लॉजिकल दिमाग एक लिमिटेशंस में भरा हुआ है. आपका लॉजिकल माइंड एक लिमिटेशन तक ही सोच सकता है. आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल जो गाइड्स है वो आपको आगे का रास्ता बताते हैं इंट्यूटिवली, जो आपका इंट्यूशन होता है. आपका लॉजिकल दिमाग लिमिटेड है. आपका लॉजिकल दिमाग सिर्फ ये संसारिक दुनिया में चल सकता है, बट जो स्पिरिचुअल पाथ पे आपको चलना है वो तो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स ही बताएंगे. आप वहाँ पे अपना लॉजिकल दिमाग नहीं चला सकते हो, आप वहाँ पे अपना लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे सकते हो. फिर आपको वही रहना पड़ेगा जहाँ पर आप हो. बट अगर आप आपकी करंट रियलिटी को छोड़ के एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको सुनना पड़ेगा आपके स्पिरिचुअल गाइड्स का, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज नहीं है. ऑफकोर्स आवर सोल इज वेरी मच पावरफुल एंड नॉलेजेबल, बट आपको सुनना भी तो पड़ेगा ना. आपका इंट्यूशन, आपको सुनना पड़ेगा आपके इंट्यूशन का. आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो. अगर मैंने आज आपको बोला मैनिफेस्टेशन, आप बोलोगे कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ मैनिफेस्टेशन. आज अगर आप मेरे को बोलोगे कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉड, आपका गॉड का प्रूफ तो आपका इंट्यूशन देगा ना. इवन इफ आपका लॉजिकल दिमाग कुछ रीजनिंग दे सकता है, फील तो आपका इंट्यूशन कराएगा. तो फील करना, इंट्यूटिवली डिसीजन लेना इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर ग्रोथ. ये चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो. आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन. आपके इंट्यूशन को इग्नोर मत करो. आप जितना करोगे सेम लेवल पे अटके रहोगे, फंसे रहोगे, यार फिर आपका वही फ्रस्ट्रेशन आपके स्पिरिट गाइड्स पे, यूनिवर्स पे, स्पिरिचुअल पाथ पे आप डाउट करके निकालते हो, विच डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज आप वो चीज़ें करते हो जो आपके गाइड बुक में लिखा भी नहीं है, और फिर आप बोलते हो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे. अगर आपको केक बनाना है, बट अगर आप बिरयानी की कुछ तो रेसिपी बना के आप लिख रहे हो, बिकॉज आपने सिर्फ बिरयानी बनाई है आज तक, अगर आपने लाइफ भर में सिर्फ बिरयानी बनाई है, एंड अगर आप बोलते हो कि मुझे केक में भी सेम रेसिपी डालना है बिकॉज आप वो बेस्ट थे आप बिरयानी बनाने में, बट आपको अभी वो बनाना ही नहीं है ना, वो नॉलेज आपके काम नहीं आएगा. पाइल नंबर 2, समझ रहे हो आप. आपको केक बनाना है तो केक बनाने की रेसिपी नहीं आती है तो वो बता रहे हैं, सुनो तो आप. अगर आप बोलोगे मैं इसमें बेस्ट थी तो मैं वही चीज़ें मिक्स करके मैं बनाती हूँ, नहीं बनेगा. कुछ तो अजीब सा बनेगा. वही हो रहा है आपके साथ. आप कुछ तो अजीब सा रिजल्ट बना रहे हो किसी चीज़ का. एंड ये कॉन्फिडेंस, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत एलिमेंट आ रहा है, पैशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एनर्जी आ रही है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बट वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है. आप फायर साइन हो सकते हो, एरिस लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, डजेंट मैटर. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये वो जो भी था अपने करियर में आपने ग्रो करा, विच इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक. स्पिरिचुअली ग्रो करना है, पैशनेटली ग्रो करना है, रिलेशनशिप में ग्रो करना है, स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करना है. बेसिकली लाइफ के कोई पाथ से अगर आप दूसरे लेवल पे जाना चाहते हो, इंट्यूशन की सुनो, दैट्स द मैसेज. आई विल एंड इट हियर बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो रहा है. बहुत सारे चैनल मैसेजेस और हैं. नंबर 16 बाय द वे, 16 इज ऑल्सो 7 अगेन. 7 आप ही के रीडिंग में आया था, तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. 7 इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी बाय द वे. अगर आप स्पिरिचुअली एनहांस करना चाहते हो, अगर आपका लाइफ पाथ 7 है, लाइफ पाथ 7 के लाइफ में यूजुअली देखा जाता है कि वो रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत सारे लेसन सीखते हैं अपने लाइफ में, एंड देन दे अप्लाई टू देयर स्पिरिचुअल लर्निंग्स. आपके रिलेशनशिप स्पिरिचुअल ग्रोथ का कैटलिस्ट होता है लाइफ पाथ नंबर 7, राइट. तो आपको बोला जाए अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, आपके इंट्यूशन की सुनो. आपके लाइफ में जो भी फिलहाल प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए है बिकॉज आप आपके इंट्यूशन को इग्नोर करते हो, अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्री है टुवर्ड्स यू, बिकॉज आप उनकी बात नहीं मानते हो. आप उनकी बात सुनते ही नहीं हो. पॉइंट नंबर 2, राइट. दैट्स द गाइडेंस, दैट्स द मैसेज दैट आई हैव फॉर यू. अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नो कॉल्स, व्हाट्सएप ओनली. Otherwise, you can text me on Instagram or WhatsApp, and I will see you guys in the next one. Do hit that subscribe button. Sending you love and light. We'll see you in the next one. Bye bye. Take care.